یہ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر کی ہے، جلد نمبر 2 سن 1992 میں چھپی ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 767 میں یہ فرماتے ہیں وَلَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ الثِّقَاتِ، علماء ثقات میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے فی ان مروان قتل طلحہ یومئذ وکان فی حزبہ، کہ مروان نے طلحہ کو قتل کیا ہے جنگ جمل کے دوران، اور اسی اپنے گروہ میں تھا، اسی کے لشکر میں تھا، اس کو قتل کیا، اور کس نے قتل کیا؟ ابن عبد البر کی یہ ابن ایک منٹ بس یہاں پہ رک دیں، یہ ابن عبد البر کی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے، قیس کی اس روایت کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ حضرت طلحہ کو قتل کرنے والا مروان ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ بات میں اختلاف نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مثلا آپ ابن کثیر رحمہ اللہ نے خود فرمایا ان الذی یقال، کہا گیا ہے، انہوں نے بھی نہیں کہا کہ اس مجمع، کہا گیا ان الذی رماہ بهذا السام مروان ابن الحکم، کہ حضرت طلحہ کو جس نے تیر مارا تھا وہ مروان بن حکم تھا۔ وقال علی ابان قد کفیتک رجالا من قتلۃ عثمان، اور اس نے ابان بن عثمان سے کہا تھا، یعنی مروان نے ابان بن عثمان سے کہا تھا کہ میں ان لوگوں کے لیے تیری طرف سے کافی ہو گیا ہوں جو عثمان کے قاتل تھے۔ وقد قیل ان الذی رماہ غیرہ، اور یہ بات کہی گئی ہے کہ تیر مارنے والا دوسرا تھا۔ حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ خود بیان کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ متفق علیہ نہیں ہے، مختلف فی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا قیس کی اس روایت کی وجہ سے کہ حضرت طلحہ کو مارنے والا مروان ہے، لیکن یہ متفق علیہ نہیں ہے جیسا کہ یہ ابن عبد البر کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ بات بالکل اختلافی ہے، بلکہ خود ابن کثیر فرما رہے ہیں وَهَذَا عِنْدِي اقرب، اور میرے نزدیک ابن کثیر جیسا مورخ جو اسلامی تاریخ کا ایک معروف آدمی ہے، وہ ابن کثیر امام ابن کثیر کیا فرما رہے وَهَذَا عِنْدِي اقرب، میرے نزدیک قریبی بات یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ حضرت طلحہ کو قتل کرنے والا مروان نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ مَشْهُورًا، گرچہ کی پہلی بات مشہور ہو گئی ہے، پہلی بات لوگوں میں شہرت پا گئی کہ اس کی روایت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو گئی، لیکن کہہ رہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، میرے نزدیک صحیح بات ہے کہ قتل کرنے والا مروان نہیں تھا۔ اور بھائی حضرت علی سے زیادہ اس کو اور زیادہ تفصیل سے کون جان سکتا تھا؟ حضرت علی کے سامنے جب اس بات کا اعتراف ہو گیا تو بعد کے لوگوں نے اس کے بارے میں کیا قصے گڑھ لیے اور کیا باتیں مشہور ہو گئیں وہ دلیل نہیں ہوتی ہے، جو لوگ اس وقت موجود تھے وہ زیادہ بہترین حالات کو جاننے والے تھے۔ اچھا، اب کیونکہ یہ حوالہ دے رہے ہیں سلف کا، تو ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ بھائی مورخین اسلاف جو اہل سنت کے ہیں انہوں نے بکثرت یہ بات ثابت کی ہے اور اس کو اجماع اس پر نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلین میں کوئی بھی صحابی شامل نہیں تھا۔ اگر آپ اہل سنت ہی کے ائمہ کا حوالہ دے رہے ہیں اس بات کو دلیل بنا کر کے کہ مروان نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو قتل کیا تھا کیونکہ طلحہ بن عبید اللہ شامل تھے حضرت عثمان کے قتل میں، تو آپ اہل سنت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، اہل سنت کی کتابوں میں ائمہ نے اس بات پر اتفاق نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت میں کوئی بھی صحابی شامل نہیں تھے۔ حسن بصری کا حوالہ اس سے پہلے میں دے چکا ہوں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ورب الحافظ ابن عساکر روایت کرتے ہیں ان عثمان لما عزم علی اہل الدار فی الانصراف، جب حضرت عثمان نے جو ان کے گھر میں موجود تھے ان لوگوں کو بالکل یہ کہہ دیا کہ اب تو میرے گھر سے باہر نکل جاؤ، ولم یبق عنده سوا اہلہ، سوائے ان کی بیوی کے اور کوئی ان کے پاس نہیں بچا، تصور علیہ الدار، تو جو باغی تھے وہ دیوار پھاند کر کے ان کے گھر میں داخل ہوئے، وَأَحْرَقُوا الْبَابَ، حضرت عثمان کا دروازہ جلا دیا، وَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور ان کے گھر میں داخل ہو گئے، لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَلَا أَبْنَاؤُهُمْ، اور ان میں سے ایک بھی صحابی نہیں تھا، نہ کسی صحابی کا بیٹا تھا۔ ابن عساکر رحمہ اللہ فرما رہے کہ ایک بھی صحابی حضرت عثمان کے قتل میں ملوث نہیں تھا۔ حضرت حسن بصری کا حوالہ میں اس سے پہلے دے چکا ہوں جو کہ عینی شاہد حضرت عثمان کے قتل کے واقعے کے، یہاں پہ ابن عساکر کہہ رہے کہ ایک بھی شامل نہیں تھا الا محمد ابن ابی بکر، سوائے محمد ابن ابی بکر کے۔ محمد ابن ابی بکر داخل ہوئے تھے لیکن حضرت عثمان نے جب ان کو غیرت دلائی تھی تو وہ باہر نکل گئے تھے۔ محمد ابن ابی بکر صحابی نہیں ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، لیکن وہ قتل میں شامل نہیں تھے، وہ داخل تو ہوئے، اور جب انہوں نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی اور حضرت عثمان نے ان کو غیرت دلائی کہ اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے اور اس حالت میں تم کو دیکھتے تو کبھی تم سے خوش نہیں ہوتے، تو وہ شرما گئے اور چھوڑ کر کے حضرت عثمان کو چلے گئے۔ باقی کوئی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ کسی صحابی کا بیٹا حضرت عثمان کے قتل میں شامل تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں وَلَمْ يُشَارِكْ فِي قَتْلِهِ أَحَدٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ، صحابہ میں سے کوئی بھی ایک صحابی حضرت عثمان کے قتل میں شامل نہیں تھا۔ اگر حوالے آپ کو تسلیم کرنا ہی اہل سنت والجماعت کے الاستیعاب کا حوالہ لا رہے تو یہاں دیکھیے حوالہ حسن بصری کا حوالہ جو عینی شاہد موجود تھے، امام ابن کثیر کا حوالہ، امام نووی کا حوالہ، خود ابن کثیر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں
अम्मा मा यज़कुरुहु अन्नासु मिन अन्ना बाज़ सहाबती अस्लमहु व रज़िया बिक़त्लिही, और जैसा कि बाज लोग ये बात कहते हैं कि बाज सहाबा हजरत उस्मान के कत्ल से खुश हो गए थे, राजी थे। कहते हैं फहादा ला यसिहु अन अहदि मिन सहाबा, ये बात किसी भी एक सहाबी से साबित नहीं है। अन्नहु रज़िया बिक़त्लि उस्मान, कि हज़रत उस्मान के कत्ल से राजी हुए, बल कुल्लुहुम करिहहु, बल्कि हर सहाबी ने इसको नापसंद किया। व मक़तहु, इससे नाराज हुए। व सब्बा मन फ़अलहु, और जिन्होंने ये काम किया था उनको बुरा भला कहा, गालियां दी उनको। इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमा रहे हैं। तो आपने एक हवाला दिया, मैंने 3 हवाले नकल कर दिए, और हवाले इस हवाले बहुत सारे हैं जो नकल किए जा सकते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात ने बाकायदा इस बात को तस्लीम किया है, इस पर इजमा नकल किया है कि हजरत उस्मान के कत्ल करने वालों में हजरत तलहा ही नहीं, कोई भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी शामिल नहीं था। उनको कत्ल करने वाले मिस्र के बागी अजमियों की फौज थी। मेरे ख्याल से इतनी बात काफी होगी। बहुत बारकल्लाहु जबरदस्त फीकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। कुछ चीजें मैं भी इजाफा कर देता हूँ। देखिए, इसमें ये बात भी ज़हन में रखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा और जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को बहुत सारे सहाबे किराम के साथ न सिर्फ जन्नती कहा है बल्कि शहीद भी कहा है। ये बहुत ही अहम बात है, ज़हन में रखिएगा। ये मसला सिर्फ ये जो शख्स है इसकी तर्दीद का नहीं है, मसला उनकी तर्दीद का भी है जो अहले जमल को बागी कहते हैं, जैसे अली मिर्जा वगैरह। तो जो अहले जमल को कहते हैं कि इन्होंने बगावत की थी, बताइए उस लड़ाई में जिन सहाबा की मौत हुई है, कत्ल किया गया, अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में उनको शहीद करा। मैं सही मुस्लिम की एक हदीस आपके सामने पेश करता हूं। देखिए, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2417 सही मुस्लिम की हदीस है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा पर थे, पहाड़ पे थे। आप थे और अबू बकर और उमर और उस्मान व अली और अली व तलहत व जुबैर, और तलहा और जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी उस पहाड़ पर थे। फतहरकत सखरत, तो चट्टान हिली। फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इहदा, कि ठहर जा। फमा अलैका इल्ला नबीउन औ सिद्दीकुन औ शहीद, ठहर जा क्योंकि तेरे ऊपर या तो नबी है या सिद्दीक है या शहीद है। असल में जितने सहाबा उस वक्त मौजूद थे, बल्कि जितने अफराद थे नबी के साथ, उसमें या तो नबी है, यानी खुदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में कह रहे हैं, या सिद्दीक है जैसे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, या शहीद, और बाकी जो दीगर सहाबा थे वो सब के सब शहीद हैं। तो इन सहाबा में किनका तस्करा है? तलहा और जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का तस्करा है। तो बताइए कि तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अगर उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह को कत्ल किया होता और उसकी पादाश में मरवान ने उनको कत्ल किया होता उस वजह से, तो बताइए कभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको शहीद नहीं बोलते, इनको शहादत के का लक़ब नहीं देते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलहा जुबैर ये दोनों सहाबा जमल में थे, तो इन दोनों को शहीद करार देना ये बहुत बड़ी दलील है कि अहले जमल बागी नहीं थे। अल्लाह के नबी बागियों की मौत को शहीद शहादत से नहीं ताबीर करेंगे, बागी की मौत को शहादत नहीं कहा जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि शहीद है, इसका मतलब वो बागी नहीं थे। और दूसरी बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलहा को शहीद करार देना इस बात की दलील है कि तलहा कातिल नहीं है। इसके अलावा दूसरी कई रवायत में है कि हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको अल्लाह के रसूल ने बहुत सारे राज की बात बताए थे, उन्होंने उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल को जहन्नमी बताया। जब उनसे जाके लोगों ने पूछा उस्मान बिन अफ्फान रज़ी अल्लाह के कातिलीन के बारे में, अयना क़तलतहु, उस्मान के कातिलीन कहां है? क़ाल फ़िन्नार। तो हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि वो जहन्नम में। तो दूसरी बात यह कि उनको जहन्नमी कहा गया कातिल उस्मान को, और तलहा रजी अल्लाह तआला जन्नती है, उनको जन्नत की बशारत दी गई है। इसके अलावा एक और बात ध्यान में रखें कि अच्छा, इसका जो हवाला है ना तारीख इब्न शब्बा जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 1081, यहां पे ये रवायत मौजूद है कि हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस्मान रज़ी अल्लाह के कातिल को जहन्नमी कहा, जबकि वो अल्लाह के नबी के राजदार से अल्लाह के नबी बहुत सारी बातें उनको बता के रखी थी। तो ये बहुत ही अहम चीज है उनका ये बयान देना कि वो जहन्नमी है, जबकि तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नती कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशरे मुबशरा में से। एक और बात ध्यान में रखें, वो ये
कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की सही रवायत है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द 7 सफ़ा 546 ये रवायत है, हदीस नंबर है 37833। इसमें यह है कि अली रजी अल्लाह वक़ाल अली लितलहता व ज़ुबैर, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तलहा ज़ुबैर से कहा कि अलम तोबा यानी, कि क्या तुम लोगों ने मेरी बैत नहीं की थी। यानी जब वो उनके खिलाफ हो गए तो अली रजी अल्लाह ने कहा कि भाई तलहा ज़ुबैर आप दोनों तो मेरी बैत कर चुके हैं, फिर आप हमारे खिलाफ क्यों जा रहे हैं। फ़क़ाल, तो इन दोनों ने क्या कहा, नतलुबु दम उस्मान, हमें उस्मान रज़ी के खून का बदला चाहिए। फ़क़ाल अली, तो अली रज़ी अल्लाह ने कहा कि लैसा इंदी दम उस्मान, भाई मेरे पास तो उनके खून का बदला नहीं, यानी मैं तो उसमें शामिल नहीं हूं। आप सोचे कि यहाँ तलहा ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों के दोनों अली रज़ी अल्लाह के सामने कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें उस्मान के खून का बदला चाहिए। तो अगर तलहा रज़ी अल्लाह शामिल होते तो उनके इस कहने पे फौरन जवाब देते कि भाई आपने खुद कत्ल किया और हमसे बदला चाह रहे हो। लेकिन अली रज़ी ने ऐसा नहीं कहा। इसका मतलब ये कि अली रज़ी की नजर में भी तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कातिल उस्मान नहीं है। असल बात यह है ना कि ये इन लोगों का मामला होता है कि जो कूफी होते हैं, शरारती होते हैं, खास उसको याद रहे कि अहले कूफा भी उस्मान बिन अफ़्फ़ान के शहादत में उनको कत्ल करने में शरीक थे। सही बुखारी की रवायत से इसका सबूत मौजूद है। जन्नती साहबी ने बाकायदा इसकी गवाही दी है। तो ये जो लोग होते हैं ना, इनकी एक आदत आप देखेंगे कि ये लोग कत्ल करेंगे और उसके बाद उसका इल्जाम किसी और के सर पे डाल देंगे। ये बहुत बदमाशी इन लोगों ने की है, जो बनो उमय्या को बदनाम करने के लिए या फिर ये कि सहाबे कराम को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने इनका एक मामूल बन चुका है कि जो असल कातिल है उसको छुपा के किसी और को बतौर कातिल सामने पेश कर देंगे। अहले बैत को के जो असल कातिलीन हैं उनको पीछे करके छुपा के और जो उनके कातिल नहीं है उनका नाम पेश करेंगे। इसी तरह से सहाबे कराम किसी को बदनाम करना होगा, जो असल कातिलों को छुपाना, इनकी आदत आप देखें कि ये बनो उमय्या को बदनाम करने के लिए नालायकों ने कितना बड़ा हंगामा किया। कि एक तो ये जैसे देखिए कि तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कातिल कोई और है और इल्जाम लगा दिया मरवान पे, मुआविया रज़ी अल्लाह का वो साथी है और उन पे इल्जाम लगा दिया। कातिल कोई और, उसको छुपा के दूसरे को जो है कातिल के तौर पर पेश कर दिया। और फिर उस्मान का भी देखिए, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, कातिल कोई और कातिल कर दिया तलहा को। अजीब बात है। यानी उस्मान का कातिल कौन है, ये मालिक अल अश्तर है। समझ रहे, मालिक अल अश्तर कूफी, ये कूफा का सबसे बड़ा दहशतगर्द था। ये बदमाश कूफा से चल के आया था और इसको उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कुत्ता कहा है और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इसके ऊपर बद्दुआ दी है। और इस बदमाश ने खुद एक रवायत में कहा है कि हमने इसको मारा है, यानी उस्मान रज़ी अल्लाह तआला का जो इकबाली मुजरिम है, बताइए उसको बचा रहे हैं। मालिक अल अश्तर जो इकबाली मुजरिम है कत्ल उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, उसको ये लोग बचा के किसको लाके खड़ा कर रहे हैं, माज़अल्लाह तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को। देखिए कितने बड़े बदमाश लोग हैं। यानी जो असल कातिल है उसको छुपा रहे, कूफी को छुपा रहे। तो कूफियों को छुपाना और दूसरे को कातिल के तौर पर पेश करना इनकी कोई नई आदत नहीं है। इन लोगों ने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को खुद मारा और कत्ल का इल्जाम लगा दिया तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर। ऐसे ही कूफियों ने, मालिक अश्तर कौन था, कूफी था, ये कूफी दहशतगर्द था, इसने कत्ल किया, इसने जो है उनको शहीद किया और इल्जाम लगा दिया तलहा रज़ी अल्लाह तआला पर। ऐसे ही मामला हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी है। अहले कूफा ने उनको शहीद किया, इल्जाम लगा दिया यजीद पे। इन लोगों का मामूल बना हुआ है कि कत्ल कोई और करेगा, इल्जाम किसी और पे लगा देंगे। उस्मान रज़ी का कत्ल करने वाला, इनको शहीद करने वाला कूफी है, इल्जाम लगा दिया तलहा पे। हुसैन रज़ी अल्लाह को शहीद करने वाला कूफी है, इल्जाम लगा दिया यजीद पे। बल्कि इससे पहले आप देखें अहले बैत में से जो सबसे बड़े शहीद हैं, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदुश शुहदा कहा है, हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको शहीद किसी और ने किया था। सही बुखारी की रिवायत मौजूद है कि जुबैर बिन मुतइम उनके खानदान वालों ने भेजा था और वहशी को उनका गुलाम था, वो उनको जाके जो है उसने कत्ल किया। अब उसको इन लोगों ने झूठ बोल के डोबी डाल दिया बनो उमय्या के खाते में कि इन्होंने मारा है हमजा रज़ी अल्लाह अन्हा को। जो है हिंद ने
जो है उनको अपने गुलाम को भेजा, और न सिर्फ ये कहा कि शहीद करवाया, बल्कि यहां तक झूठ बयान कर दिया कि माज़अल्लाह वो कलेजा चबाए। सारी बातें झूठ, खुराफात और सही बुखारी की रवायत के खिलाफ है। तो ये मामला सिर्फ उस्मान रज़ियल्लाहु का नहीं है, बहुत सारी जगहों पे इनका यही मामूल बना हुआ है कि ये कत्ल कोई और करेगा, कातिल को छुपा के किसी साफ सुथरे आदमी पर उसका इल्जाम रख देंगे। हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल का इल्जाम भी उमैया पर डाल दिया, उस्मान रज़ियल्लाहु के कत्ल का इल्जाम तलहा पे डाल दिया, हुसैन रज़ियल्लाहु के शहादत का इल्जाम यजीद पे डाल दिया। ये इनकी जो है पुरानी आदत है। और इन सब के पीछे जो है खास तौर से ये जो कूफियों की हरकत है, ये अपने लोगों को बचाने की जो है आदत है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो कहा है ना कि वमन यक्सिब खतियतन औ इस्मन सुम्मा यरमी बिही बरियन फक़द इहतमला बुहताना व इस्मम मुबीना, कि जो आदमी कोई गलती करे, गुनाह करे और फिर किसी बरी पर उसकी तहमत लाद दे, बहुत बड़ा बुहतान, बहुत बड़ा गुनाह का काम कर रहा है। तो ऐसे लोग होते हैं कि वो गलती कोई और करता है, इल्जाम किसी और पे डाल देते हैं। तो ये खास तौर से अहले कूफा की ये आदत रही है, इसको हमें सामने रखना चाहिए, इसको हमें समझना चाहिए। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।